Hello everyone, welcome to the Interest English Academy. In this series, we are learning a syllabus of RGPB, and in this syllabus, we are learning English for Communication VT 103. This syllabus is very beneficial for VTech students who are pursuing VTech. And in this, we are covering second unit. In second unit, we are covering vocabulary building and comprehension. In this, we have covered prefix and suffix, synonyms and antonyms in first part, and we have also covered introduction of reading and benefits of reading in second part, and we have also covered types of reading, what are the types of reading in third part. Now, in this fourth part, we will cover techniques of reading, and we'll cover what are the techniques of reading and how these techniques are very useful for reading comprehensions to develop your reading comprehensions. Before starting, this is a gentle reminder that you should follow and you should subscribe our channel. You should also like our videos, and you all should also share these videos then who have a need of this. So now we are starting this session, and in this session we are covering technique of reading. अब हम इस सेक्शन में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ रीडिंग. अब रीडिंग टेक्निक, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम है दी SQ3R टेक्निक. ये जो SQ3R टेक्निक है, ये रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए और रीडिंग को बहुत अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. नाउ वन बाय वन we shall discuss that what is this technique and what are the benefits of this technique. So SQ3R stands for, first of all we will come to know that what's the meaning of SQ and 3R. So here the S means survey, S stands for survey, and Q stands for question, and R means read, next R means recite, and last R means the review. So, what is the full form of the word SQ3R? So, SQ3R means survey, question, read, recite, and review. Now, we shall discuss about the technique and what is this technique and how can this technique help you to develop your reading comprehension. So, this is a proven technique to sharpen textbook reading skill. ये एक प्रूवन टेक्निक है, मतलब ये एक टेक्निक है जो रिसर्च बेस्ड टेक्निक है, जिसके थ्रू आप कॉलेजेस में, इन कॉलेजेस यू विल फ्रीक्वेंटली बी असाइंड द मल्टीपल चैप्टर फॉर सेवरल डिफरेंट कोर्सेज इन द बुक्स, एंड दैट कैन बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. और जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी किताबों को पढ़ना होता है, क्योंकि हम वहां पर बहुत सारा जो नॉलेज है वो इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि जो नॉलेज जब हम ज्यादा हमारे पास होगा तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस courses has been designed for engineering students. So if you are engineer students and you will have to read a multiple books and during your course, so this is not only important for learning only English, but it is a this technique is very important for learning all the books, all the reading books which you are going to read upcoming 4 years. And SQ3R helps reading purpose and meaningfully so that you use your time most efficiently. The here's how is this strategy work. Now we'll understand that how the reading technique work और कैसे वो काम करती है. जो ये रीडिंग की तुम्हारी टेक्निक है SQ3R, वो आपको रीडिंग को पर्पसफुल बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी. मतलब जो आप रीड कर रहे हो उसको आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है और रीडिंग को हम कैसे एक्चुअली में करेंगे, वो आप इस पर्टिकुलर चीज से सीख सकते हो. ठीक है, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the first point of this technique, that is a survey. What does it mean a survey? Survey होता है get an idea of what the chapter is about by reviewing the highlights, read the title, heading, subheading, take note of the words that are italicized or bold, look at the chart, graph, picture, map, and the other visual material, read captions, read the beginning and end of the chapter.
इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले जो भी हम बुक पढ़ने वाले हैं या फिर जो भी हम टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, उसको हमें एक जनरल आइडिया उसका हमें लेना है सबसे पहले उस चैप्टर का। एक जल्दी से हमें रिव्यू, जो हमने टाइप्स ऑफ रीडिंग पढ़ी थी, तो वहां पर रिव्यू करना है जल्दी से, फटाफट हमें प्रीव्यू करके, और उस चीज को हमें देखना है। हमें उसकी हेडिंग्स को देखना है, सब हेडिंग्स को देखना है, टाइटल्स को देखना है, सब टाइटल्स को देखना है। और भी जब हम बुक्स में देखते हैं तो राइटर, जो बुक राइटर होता है, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज को करता है, जैसे बहुत सारी चीजों को वो बोल्ड कर देता है, इटलाइज कर देता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे उस पर्टिकुलर चैप्टर में ग्राफ्स हैं, पिक्चर है, मैप है, क्योंकि जो भी रीडिंग मटेरियल उस पिक्चर में है, वो सारी की सारी रीडिंग मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर्वे वाले पॉइंट में और फर्स्ट पॉइंट ऑफ द टेक्निक, आप लोगों को क्या करना है, सारे स्टूडेंट्स को क्या करना होता है, यू विल हैव टू जस्ट गो एंड थ्रो एंड प्रीव्यू ऑल द थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। जल्दी जल्दी हमें क्या करना है, उसको प्रीव्यू कर लेना है। जो भी उस पर्टिकुलर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, उसको हम जल्दी से प्रीव्यू करके और देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और किस चीज के लिए वो हम बुक पढ़ रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है उस बुक में पढ़ने का, क्या उस पर्पस के अकॉर्डिंग वो बुक है या फिर नहीं। अगर वो उस पर्पस के अराउंड बुक है, तो हमारा अगला पॉइंट आता है क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंटली है। क्या होता है, जनरली जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, तो पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारे टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, हम उनके आंसर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हम शुरुआत में ऐसा करें, इस टेक्निक का यूज करें, और हम ऐसा करें जैसे टेक्निक में दिया गया है, कैसे दिया गया है, as you survey the text, ask the question from each section, ask what, why, how, when, who, and where the question as they related, and subheadings into the questions. Rewrite the question at the end of the chapter, and after each subheading in your own words, write down your questions. Questions help you pay attention, understand the text better, and recall the information more easily later on. अब सपोज आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, उसका कोई टाइटल है, सपोज का टाइटल है हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए व्हाट इज पॉल्यूशन। ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर बुक से जो भी उसमें टाइटल है, सब टाइटल है, सबसे हम क्वेश्चन क्रिएट करें कि ये क्या होता है। मींस हम अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन उसको पढ़ते हुए, जैसे हमने हेडिंग पढ़ी, सब हेडिंग पढ़ी, हमने कोई पिक्चर देखी, हमने यूटिलाइज वर्ड देखा, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड था, तो हम उससे क्वेश्चन क्रिएट कर लें। कि जैसे क्वेश्चन कैसे हम क्रिएट करेंगे, या तो हम व्हाट का यूज करके करेंगे, व्हाई, हाउ, व्हेन, इन सारे वर्ड का यूज करके एज नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन क्रिएट। तो क्रिएट द क्वेश्चन। जब आप लोग इस सारे के सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर लेंगे, जो भी पिक्चर से बनेगा, या हेडिंग से बनेगा, सब हेडिंग से बनेगा, टाइटल से बनेगा, सब टाइटल से बनेगा, सारे के सारे जब आप क्वेश्चन क्रिएट कर चुके होंगे, तो क्या होगा, वो क्वेश्चंस के आप आंसर ढूंढते हुए आगे रीड करेंगे। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढोगे, और यू विल फाइंड, जब तुम सारे क्वेश्चन क्रिएट कर लोगे और आंसर ढूंढते हुए पढ़ोगे और दिमाग में वो आंसर रखोगे, और सपोज उन क्वेश्चंस के तुम्हें आंसर मिल गए हैं, तो तुम ये फाइंड करोगे, तो जो बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर आपसे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। इसलिए ये टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करना है, हमें रीड करना है। अब हमें रीड करना है, तो हमें रीड ऐसे नहीं करना है कि हमने बस चैप्टर उठाया और जल्दी जल्दी हम फटाफट उसको पढ़ते चले गए, लाउड रीडिंग कर ली हमने, या फिर फटाफट हमने साइलेंट रीडिंग कर ली। ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ पर इंटेंसिव रीडिंग करना है। इंटेंसिव रीडिंग करना है, और या फिर हम बोले इसको क्रिटिकल रीडिंग करना है। तो इंटेंसिव रीडिंग कैसे करेंगे, हमें पढ़ना है, और ये भी हमें ध्यान रखना है साथ साथ में कि जो हमने क्वेश्चन क्रिएट करते हैं उनके आंसर्स को देखते हुए पढ़ना है। तो रीड वन सेक्शन और अ चैप्टर एट अ टाइम, और एक टाइम में एक ही चैप्टर को आप पढ़ेंगे और एक ही सेक्शन को पढ़ेंगे, एक्टिवली लुकिंग फॉर द आंसर टू योर क्वेश्चन दैट सेक्शन। अब आपने उस सेक्शन में जितने भी पर्टिकुलर क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, आपने अपनी नोटबुक में उन क्वेश्चन का आंसर देखते हुए आपको उसको पढ़ना है। पे अटेंशन टू द बोल्ड एंड यूटिलाइज्ड टेक्स्ट दैट ऑथर यूज्ड टू मेक द इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, जो ऑथर है, राइटर है उस बुक का, उसने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बोल्ड किया होगा, उसमें यूटिलाइज किया होगा, उन वर्ड्स को भी आपको क्या करना है, देखते हुए चलना है। क्या उन वर्ड के थ्रू भी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। वी श्योर टू रिव्यू एवरीथिंग इन दिस सेक्शन इंक्लूडिंग टेबल्स, ग्राफ, इलस्ट्रेशंस, और आपको सब चीजें जो उसमें टेबल्स दिए हुए हैं, ग्राफ दिए हुए हैं, कोई भी इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है, मतलब एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन सब चीजों को पढ़ते हुए जाना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहीं से मिलेंगे।
as these features can communicate and ideas more powerfully than the text, क्योंकि जो उसमें पिक्चर्स होती हैं, ग्राफ होते हैं, चार्ट होते हैं, ये सारे के सारे सेक्शंस भी आपको आंसर और अच्छे से दे सकते हैं। कभी कभी जब हम देखते हैं तो कोई चीज हमें टेक्स्ट में नहीं मिल रहा होता है आंसर, लेकिन वो हमें टेबल में मिल जाता है, या फिर उसमें जो ग्राफ होता है उस ग्राफ में मिल जाता है, या फिर जो पिक्चर्स होती है उस पिक्चर्स में मिल जाता है। इसीलिए दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जब रीड करना है तो सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ते नहीं जाना है, आपको क्या करना है, इंटेंसिव रीडिंग करनी है। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, और साथ साथ में जो क्वेश्चन आपने क्रिएट किए हुए हैं उन क्वेश्चन के आंसर्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज को पढ़ना है। ठीक है, नाउ वी शैल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ रिसाइट। At the end of each section, look up from the text and in your own words recite an answer to your question that section, then write down your answer. Be sure to provide example that support it. Yeah, it is very necessary. I'm explaining you one by one. अब जब हम लोग उसको पढ़ चुके हैं तो पढ़ने के बाद हमारा क्या है कि जो भी हमने उस सेक्शन के क्वेश्चन क्रिएट किए थे उनके आंसर को हमें ढूंढना है, उनके आंसर्स को हमें ढूंढ लेना है, और फिर जो आंसर्स हैं उसको हमें क्या कर लेना है, राइट डाउन भी कर लेना है। अगर हमें सेक्शन के आंसर मिल गए हैं तो उसको हमें राइट डाउन कर लेना है। वी श्योर टू प्रोवाइड एग्जाम्पल। हाँ, अगर वहां पर आपको कोई एग्जाम्पल्स भी देना है, एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, और आप एग्जाम्पल्स उस बुक से लेके भी दे सकते हो, जो उस टेक्स्ट में एग्जाम्पल दिए है उसका भी यूज कर सकते हो, या फिर उसी के जैसा एग्जाम्पल एक आपने मन से भी ऐड कर सकते हो। तो जो एग्जाम्पल आप खुद से ऐड करोगे, अपने मन से ऐड करोगे, वो एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा जब आप एग्जाम में जाओगे, किसी जगह पर एग्जाम में आपको जो लिखना होगा, तो दैट विल हेल्प यू मच। नाउ रिपीट द क्वेश्चन, और फिर क्या करना है, क्वेश्चन, रीड और रिसाइट, इसी एक्टिविटीज को तब तक रिपीट करना है जब तक आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। सेक्शन और असाइन रीडिंग, जो भी तुम्हें रीडिंग मिला है, रीडिंग टास्क मिला है, एक एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पर ऐसे ही उनके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हुए अप्लाई करते जाइए और सारे के आंसर्स को ढूंढते जाइए। फर्स्ट आस्क द क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट सेक्शन एंड देन रीड द फाइनल आंसर। जब भी आप अगला सेक्शन पढ़े तो सेम उससे पहले क्वेश्चन पूछें कि उस क्वेश्चन क्या क्वेश्चन करना है सेक्शन से रिलेटेड, और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर को आपको क्या करना है, ढूंढते हुए जाना है। फाइनली रिसाइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड जॉट डाउन। जॉट डाउन मतलब होता है लिखना। आपको क्या करना है, वहां पर सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपने क्रिएट किए थे उनके आंसर्स को क्या करना है, योर ओन वर्ड, अपने वर्ड में अपने दिमाग में रख लेना है, फिर उनको लिख लेना है। द रिटन क्वेश्चंस एंड आंसर विल हेल्प यू टू स्टडी द फ्यूचर। जब आप कभी भविष्य में किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को बुक में एग्जाम में जा रहे हैं, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन, और फिर अगर आप इस टेक्निक से उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर तुम्हें याद ही हो जाएगा, और बाद में वो चैप्टर तुम्हें कभी भूलेगा नहीं। सिर्फ आपको क्या करना होता, जो आपने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं क्वेश्चंस के, उन क्वेश्चन के थ्रू आपको जल्दी जल्दी जाना है, और आपके लिए वो चैप्टर और वो चीजें बहुत क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। इसीलिए हमें इस टेक्निक के थ्रू क्या करना है, रीडिंग करना सीखना है। अगर आप इस टेक्निक के थ्रू रीडिंग करना सीखते हैं तो it is sure your reading comprehension will be very good and your reading comprehension will enhance very much. Now review, yeah, it is very important point. After completing each chapter or reading assignment, review your notes, identify the main points of the reading, identify the main points of reading while looking the most important idea of each section। अब आपको सारे के सारे सेक्शन से इंपॉर्टेंट आइडियाज को लेते रहना है, और फिर रिसाइट करना है, राइट अ ब्रीफ समरी, क्योंकि आपको उस चैप्टर की ब्रीफ समरी या फिर हम बोले कंक्लूजन लिखना है। जब आप उस चैप्टर का कंक्लूजन लिखोगे तो कंक्लूजन आप कैसे लिखोगे, जब आपको सारे सेक्शन से कुछ कुछ मेन आइडियाज पता होंगे, तो जब हम कंक्लूजन या समरी में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं। कंक्लूजन समरी का मतलब क्या होता है, हम पूरे चैप्टर को थोड़ी लिख देंगे उसमें। कंक्लूजन और समरी में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन और समरी में हम सिर्फ मेन पॉइंट लिखते हैं। एंड रिव्यू योर स्टडी नोट्स एंड एवरी वीक टू हेल्प योर रिमेम्बर। और फिर अगर आप चाहते हैं कि इसको एग्जाम तक या आप लाइफ में जब इंटरव्यू में आप जाएंगे, चैप्टर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रखनी है, तो आप इसको रिव्यू करते रहें वीकली और इन क्वार्टर ऑफ मंथ, आप क्या करते रहें,
करते रहे, हाफ मंथ क्वार्टर मंथ में इसको क्या करते रहे, रिव्यू करते रहे. व्हेन इट टाइम टू स्टडी फॉर योर टेस्ट यू विल हैव टू क्रिएट एन और जब आप वहां पर आपका कोई टेस्ट होगा या एग्जाम होगा तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. तो ये जो टेक्निक होती है SQ3R टेक्निक, इस टेक्निक के थ्रू जब हम किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, किसी भी चैप्टर को, जो भी हमें रीडिंग असाइनमेंट दिया गया है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो बिलीव माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इस पर्टिकुलर चीज से पढ़ना शुरू करते हैं, इस टेक्निक के थ्रू पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है और यू आर गोइंग टू गेट अ मच अबाउट थिंग्स. और आपका जो रीडिंग हैबिट होगा वो बढ़ जाएगा. जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा और उस क्वेश्चंस को आंसर करना. तो आप सारे के सारे बुक्स को अभी आने वाले अपकमिंग ईयर्स में आप इस टेक्निक का यूज करें और सारी की सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करें. दैट विल वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और दैट इज द एंड अबाउट अवर सेकंड यूनिट. यहाँ पर हमारी सेकंड यूनिट खत्म होती है. हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड यूनिट में क्या क्या सारी चीजें कवर कर ली हैं. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है आपको इस वीडियो के साथ लिंक दे दी जाएंगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं और ये भी आप इंपॉर्टेंटली देख सकते हैं. और आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे क्या होगा, हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगी. सेकंड यूनिट के बाद आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सारी यूनिट्स आपको ऐसी मिलने वाली है. फर्स्ट यूनिट जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसकी भी आपको एक्सरसाइज मिलेंगी बहुत सारी. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और यदि आप इंग्लिश स्पोकन या पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के बारे में ऑफलाइन 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 या ऑनलाइन किसी भी तरह का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.